Hello friends, welcome back to my YouTube channel Next Gen Learning. As you all know, we are going to discuss geography from grade 6 to 10. So my today's video is related to the series of grade 8 geography. In my previous video, I had discussed chapter 2, land, soil, wildlife sanctuary, natural vegetation from grade 8 geography. So my today's video is also related with my previous video. Today I'm going to discuss textual question and answers with you. Okay, I'll also share the link of these question and answers in my description box. So whenever you want, you can go through that link. And if you have any query, please contact me directly through the comment box or through the contact information link. I'm always ready to help my students. So let's start. I should be waste our time. Let me share my screen. Give me 1 second, please. Here we go. Land, soil, water, natural vegetation, and wildlife sanctuary. Okay. First question is, which are two main climatic factors responsible for soil formation? कौन से दो फैक्टर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में, मिट्टी के बनने में? सो आंसर इज टेम्परेचर एंड रेनफॉल. Temperature and rainfall played major role in the formation of soil, and rainfall also helps or influence the rate of weathering and humus formation. रेनफॉल से आप ह्यूमस भी आप बोल सकते हो कि सॉइल में बनता है. Right, two reasons for land degradation today. Overuse of chemical fertilizer and deforestation are two main reasons for land degradation. Chemical fertilizers farmers के थ्रू बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आजकल फार्मिंग में, राइट. और डिफॉरेस्टेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रीज हम लोग काट रहे हैं रहने के लिए, खेती बाड़ी के लिए, तो इसलिए भी लैंड डिग्रेडेशन एक्टिविटी हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा हो चुकी है. और नेचुरल रिसोर्स भी डिप्लीट हो रहे हैं, मीन्स खत्म हो रहे हैं. Why is land considered an important resource? Land को हम resource क्यों बोलते हैं? Land is considered as an important resource because land is used for agriculture, mining, forestry, building houses, roads, and setting up of industries. Land का इस्तेमाल हम लोग एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग हाउसेस बनाने के लिए, इन सब चीजों के लिए हम यूज करते हैं. Name two steps that the government has taken to conserve plants and animals. गवर्नमेंट ने क्या किया है प्लांट्स और एनिमल्स को बचाने के लिए? उन्होंने नेशनल पार्क्स बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं, और हर साल बच्चों में अवेयरनेस लाने के लिए हम लोग स्कूल्स में वन महोत्सव प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं ना. करते हैं कि नहीं करते? हर साल जून में. तो आप लोग भी आई होप अपने स्कूल में ट्रीज लगाते होंगे या कुछ स्ट्रीट प्ले समथिंग करते होंगे जिसके थ्रू हम लोगों में जानकारी दे सके कि हाँ, ट्रीज आर इम्पोर्टेंट एंड वी नीड टू कंजर्व देम, वी नीड टू ग्रो लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज. सो जस्ट 3 ways टू कंजर्व वाटर. 3 तरीके बताइए जिससे आप पानी को बचा सकते हैं. नंबर 1, इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर एंड अदर वेजिटेशन टू स्लो द सरफेस रन ऑफ. Replenishing underground water through rainwater harvesting, reducing loss of water in irrigation, and shifting to less water intensive method of agriculture. Try to write whenever the question is about 3 ways steps taken by government in points, not in a paragraph. पैराग्राफ में लिखने से क्या हो जाता है, वो एक स्टोरी फॉर्म में आ जाता है. बट एसएसटी में आप जितना पॉइंट्स में लिखोगे यू विल गेट मोर, इट्स अ पॉसिबिलिटी कि आपको अच्छे मार्क्स मिले. बट पैराग्राफ में लिखने से क्या होता है, स्टोरी फॉर्म में हो जाता है. टीचर्स आर नॉट गोइंग टू रीड दैट थिंग. दे लाइक इफ यू राइट द आंसर, इफ यू explain answers in points. Okay, so 3 ways to conserve water are increasing forest cover, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, जंगल बनाओ. रिप्लेनिशिंग अंडरग्राउंड वाटर थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ाओ. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को स्टोर करो. फार्मिंग में ट्राई टू यूज लेस अमाउंट ऑफ वाटर. ये नहीं कि इरिगेशन के नाम पे आप ज्यादा से ज्यादा पानी वेस्ट ही कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. इवन हम लोग, हमारे घर में भी गार्डन्स होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पाइप लगा के पानी छोड़ देते हैं. तो वो नहीं करना है. मग में लो, पानी लो, बाल्टी में लो, और उससे जो है प्लांट्स में दो. सो बाय दिस यू कैन सेव वाटर. Okay, instead of using water pipes, try to give water through the by taking help of buckets and you can say mug. Okay,
Which one of the following is not a factor of soil formation? It's a multiple choice question. You can see three options: time, soil texture, and organic matter. So soil texture doesn't play important role in soil formation. Which one of the following method is most appropriate to check soil erosion on steep slopes? पहाड़ों में अगर हमें सॉइल इरोजन को कंट्रोल करना है तो क्या करना चाहिए? हमें वहां पे टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए. ओके. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर? इसमें से कौन सा फैक्टर है जिसको आप बोल सकते हो कि इम्पोर्टेंट नहीं है या सुटेबल नहीं है नेचर को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए नेचर को? स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज. बल्ब मत जलाओ जब उसके इस्तेमाल नहीं है. Close the tap immediately after using. Dispose polypacks after shopping. So dispose polypacks after shopping is not in favor of conservation of nature. In fact, we should not use polypacks. हमें polythene plastic bags use ही नहीं करने चाहिए. We should use jute bags और आप बोल सकते हो कपड़े के बैग. Next is the match the column. You have to match column A with column B. Land use. What is land use? Land use is productive use of land. Land use means आप land का proper इस्तेमाल करो, उसको waste ना करो, उसका over use भी मत करो, exploit भी मत करो. Humus, organic matter deposited on the top soil. Top soil जो मिट्टी के ऊपर वाली जो layer है उसको जो organic matter है that is known as humus, जिसके ऊपर आप plants grow करते हो, crops grow करते हो. रॉक डैम्स क्या करते हैं? सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं. मिट्टी बहकर नहीं जाती, मिट्टी वहीं किनारे पे रॉक्स के साथ लग के रह जाती है, पानी निकल जाता है. बायोस्फीयर, नैरो जोन ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. तीनों का कॉम्बिनेशन अगर याद हो, मैंने कल भी बताया था. लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर. लिथोस्फीयर लैंड वेयर वी स्टे, हाइड्रोस्फीयर वाटर, एटमॉस्फेयर एयर. तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज नोन एज बायोस्फीयर. Now you have to tell whether the statement is true or false, and if it is true, then give the reason. And if it is false, then again you have to give the reason. Ganga Brahmaputra plain of India is an overpopulated region. Yes, Ganga Brahmaputra region are overpopulated because that area is suitable for एग्रीकल्चर फॉर फार्मिंग. आपको याद हो तो मैंने कल बताया था, रिवर अपने साथ सॉइल लेके आती है, मिट्टी लेकर आती है, एलुवियल सॉइल जो वो किनारों पे अपने जमा करती जाती है. उस सॉइल में बहुत फर्टिलिटी है, एज अ रिजल्ट वहां पे फार्मिंग बहुत ज्यादा होती है, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि प्लेन एरियाज आर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग. पानी जो है पर पर्सन इंडिया में कम होता जा रहा है. यस, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रहा है. पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रही है. डिमांड सिर्फ पानी पीने के लिए नहीं, पानी का इस्तेमाल नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, इंडस्ट्रीज में, केमिकल फैक्ट्रीज में, हर जगह यूज हो रहा है. तो यस, वी कैन से वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग. Rows of trees planted in coastal areas to check the wind movement are called intercropping. False. Rows of trees planted to check wind movement and protect soil cover. Here we are not doing intercropping, we are trying to protect soil cover also. That's why it is known as shelter belts. Human interference and changes of climate can maintain the ecosystem. False. Climate change and human interference can cause the loss of natural habitats and hence destroy the ecosystem. Climate change होता रहेगा, बहुत गर्म हो गया, बहुत ठंडा हो गया, तो क्या होगा? क्या उससे हम रिसोर्सेज बचा सकते हैं? नो. बहुत सारे एनिमल्स हैं जो बहुत ज्यादा गर्मी में नहीं रह सकते या बहुत ज्यादा ठंड में नहीं रह सकते. बोला जाता है डायनासोर्स भी इसलिए नहीं बचे क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर क्या हो गया था, सडनली ड्रॉप्स डाउन. टेम्परेचर बहुत जीरो में चला गया था, इतना ठंडा हो गया था कि डायनासोर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर पाए. तो ज्यादा टेम्परेचर में अप डाउन फ्लक्चुएशन होगा तो दैट इज ऑल्सो डेंजरस फॉर आवर एनवायरमेंट, फॉर आवर इकोसिस्टम. और ह्यूमन इंटरफेरेंस तो है ही डेंजरस बिकॉज वो ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स हंट करने लग गए हैं या ट्रीज कटिंग करने लग गए, तो क्या हो जाता है, ये दोनों फैक्टर ही एक डेंजरस फैक्टर है हमारे इकोसिस्टम के लिए. बैलेंस होना चाहिए हर चीज में, राइट? So here I am done with the textual question and answers. I hope you understood it very well. If still, again I am repeating my words, if still there is any query, any doubt, please contact me personally through the comment box.
or through the contact information link which I had shared in the description box. Any query, please ask without any fear, without any hesitation, without any worry. I'm always ready to help my students. Okay? Thank you so much. Stay home, stay safe. Bye-bye.